Dear friends, greetings to every one of you in the name of Lord and Savior Jesus Christ. प्रिय मित्रों, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी को अभिवादन। So, God is answering all your prayer. परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर दे रहा Our है। God is a prayer answering God. हमारा परमेश्वर प्रार्थनाओं का उत्तर देने वाला परमेश्वर है। Increase your prayer. अपनी प्रार्थना को बढ़ाइए। All the time pray in the Spirit. हर समय आत्मा में प्रार्थना कीजिए। Pray with the promises of God. परमेश्वर के वायदों को याद करते हुए प्रार्थना कीजिए। Claim the real blessing God kept for you in the heavenly realm. परमेश्वर ने जो स्वर्गीय स्थल में आपके लिए आशीषें रखी हैं, उसकी सीढ़ियां चढ़े। You should have the great confidence that heaven is the real. और आपको दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि स्वर्ग सच्चा है। All the blessings are coming in our life from heaven only. और स्वर्ग से सारी आशीषें हमारे जीवन में आती हैं। James chapter 1 verse 17 says, याकूब 1:17 कहता है, all the good gifts, all the perfect gifts are coming from above, from heaven. और हर एक सिद्ध और अच्छे तोहफे परमेश्वर की ओर से आता है। Jesus Christ already opened the heaven for us. यीशु मसीह ने हमारे लिए स्वर्ग को खोल दिया है। Your mind and heart should all the time connected with the heavenly blessing. आपका हृदय और मन हमेशा स्वर्गीय आशीषों से जुड़ा रहे। All the time you should have the great desire and thirst to inherit the heavenly blessing in your life. हर समय आपको इस चाह में रहना है कि आपको स्वर्ग की आशीषों को प्राप्त करना है। You should receive the heavenly power and authority. आपको स्वर्गीय सामर्थ और अभिषेक को प्राप्त करना है। Then in this world all the blessings will be with you. तब इस सारी दुनिया की आशीषें आपके साथ साथ चलेंगी। So all the time remember that God told us to seek the God's kingdom. हमेशा याद रखें, परमेश्वर ने कहा मेरे राज्य की खोज कर। So Romans 14:17 says, रोमियो की पत्री 14:17 कहता है, the kingdom of God is the unspeakable joy of the Holy Spirit. परमेश्वर का राज्य जो कह नहीं सकते, बयान ना कर सकते, ऐसा आनंद से भरपूर है। So that's why your prayer life is very important. इसलिए आपका प्रार्थना जीवन बहुत ही महत्वपूर्ण है। Through the prayer all the impossible things are going to be possible. प्रार्थना के द्वारा जो असंभव है वो सारी बातें संभव हो जाएंगी। So through the prayer you will be grow in your spiritual life. प्रार्थना के द्वारा आप अपने आत्मिक जीवन में बढ़ते जाएंगे। If you are grow in the spiritual life you will be one with the Lord. और अगर आप आत्मिक जीवन में बढ़ेंगे, आप परमेश्वर के साथ एक हो जाएंगे। You will be transformed into the image of Christ. आप मसीह के सदृश बन जाएंगे। So you will be live in this world like Jesus. आप इस पृथ्वी पे यीशु के समान जिएंगे। So that is the God's plan. यही परमेश्वर की योजना है। That's why Jesus came. इसलिए यीशु मसीह आया। All the problem you are going through now it is going to be changed. और जो परिस्थितियां आप सामना कर रहे हैं वो सब परिस्थितियां बदल जाएंगी। The present situations are going to be changed. आज की परिस्थितियां आपकी बदल जाएंगी। Because our God is a great God. क्योंकि हमारा परमेश्वर महान परमेश्वर है। He is having a great plan for every one of you. उसके महान योजनाएं हैं आप सभी के लिए। You should believe that. आपको इस बात को विश्वास करना है। That's why Bible all the time it's talk about the blessings of God. इसलिए बाइबल हमेशा परमेश्वर के आशीषों के विषय में बात करती है। The blessings of God is the full of joy, full blessing. परमेश्वर की आशीषें आनंद से भरपूर है। So the God's blessings is having the richest grace of God. परमेश्वर के आशीषों में उसका अनुग्रह आशीषों के साथ भरा हुआ है। Inside the God's blessings no sorrow. परमेश्वर के आशीषों में दुख क्लेश नहीं है। Inside the God's blessing no kind of a lack of peace. और परमेश्वर की आशीषों में अशांति का स्थान नहीं है। So inside the God's blessing और परमेश्वर की आशीषों के अंदर the heaven will be with you. स्वर्ग आपके साथ होगा। You will be all the time in the heavenly realm. आप हर समय स्वर्गीय स्थल में होंगे। Your body, the physical body will be here, आपका शरीर यहाँ होगा, but your mind and heart will be fully connected with the heavenly realm. परंतु आपका मन और हृदय हमेशा स्वर्गीय स्थल पे होगा। That's why Luke 17:21 says, इसलिए लूका रचित सुसमाचार 17 उसका 22वां वचन कहता है। 21 says, लूका रचित सुसमाचार 17 उसका 21वां वचन कहता है, the kingdom of heaven is in you. स्वर्ग का राज्य आपके अंदर है। The kingdom of God is already in you. स्वर्ग
परमेश्वर का राज्य पहले से ही आपके अंदर है। Your home is a heavenly blessed home. आपका घर स्वर्ग से आशीषित किया गया है। Your home is a Jesus home. आपका घर यीशु का घर है। Your home is full of the heavenly blessing. आपका घर स्वर्गीय आशीषों से भरा हुआ है। Inside your home, Jesus is dwelling with you. आपके घर के अंदर यीशु मसीह साथ रहता है। So that's why the Bible very clearly says our heart is the temple of the Holy Spirit. इसलिए बाइबल स्पष्ट रूप से कहती है हमारा हृदय परमेश्वर का मंदिर है। So allow the presence of the Lord inside your heart. आपके मन के अंदर परमेश्वर को अनुमति दे। All the valleys, worries and sorrow can go away. चिंताएं सब दूर हो जाएंगी। Let the Jesus come in. जब यीशु अंदर आएगा He is full of वो joy. आनंद से भरा हुआ है। So money is not at all a matter. पैसा मायने नहीं रखेगा, Jesus is the matter. यीशु मायने रखेगा। Jesus is the matter. यीशु मायने रखेगा। The problems, all the worries and sorrow you are facing now, that is from the evil spirit. आपकी परेशानियां चिंताएं जो आप अभी अनुभव कर रहे हैं वो दुष्टात्मा के द्वारा है। That's why the Bible very clearly says, whenever you are getting anger, before the sunset, the anger should go away. इसलिए बाइबल स्पष्ट रूप से बताती है जब भी आपको क्रोध आता है वो शाम से पहले खत्म हो जाना चाहिए। So the Holy Spirit will help you. पवित्र आत्मा आपकी मदद करेगा। The work of the Holy Spirit is पवित्र आत्मा का क्या काम है? changing you. आपको बदलता है। Changing you. आपको बदलता है Because you are speaking the heavenly language. क्योंकि आप अन्य भाषाओं में बात करते So हैं। from your mouth, the worldly word should not come. आपके मुख से दुनिया के शब्द नहीं आने चाहिए। This is the changing. यही बदलाव You है। can't fight with like others. आप दूसरों के समान लड़ नहीं सकते। If somebody is fighting with you, अगर कोई आपसे लड़ता है with a godly love, परमेश्वर के प्रेम में you will never speak anything response. और उसके प्रत्युत्तर में कुछ ना बोले, So then automatically there will be a peace. तब आपके अंदर एक शांति होगी। We are called by God as a peacemaker. परमेश्वर ने हमें शांति बनाने वाला करके बुलाया है। Take a decision एक निर्णय को लें in our home. हमारे घर के अंदर Hereafter, आज से no fight. कोई लड़ाई नहीं। No fight. कोई लड़ाई नहीं। We will not fight. हम लड़ाई नहीं करेंगे। I will not get angry. हम गुस्सा नहीं होंगे। I will not fight with anyone. मैं किसी से लड़ाई नहीं करूंगा। I will not speak any unwanted negative words written in the Bible. मैं नकारात्मक शब्द का इस्तेमाल नहीं करूंगा। So I will only speak the graceful words. मैं अनुग्रह के शब्द का ही इस्तेमाल करूंगा। Bible talk about Jesus. बाइबल यीशु के बारे में बताती है। Jesus spoke the graceful words. यीशु हमेशा अनुग्रह के शब्दों को बोलता था। Inside your home, speak the graceful words. आपके घर के अंदर अनुग्रह के शब्दों को कहें। Jesus will bless your home. यीशु आपके भवन को आशीष करेगा। Your heart and mind will all the time enjoy the peace. आपका हृदय मन हमेशा परमेश्वर की शांति का अनुभव करेगा। That is the God's blessing peace. वही परमेश्वर की आशीष है शांति। Jesus said, यीशु ने कहा my own peace I already given to you. मैंने अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। The world can't give. दुनिया नहीं दे सकती। Worldly friendship can't give. दुनिया की दोस्ती नहीं दे सकती। Worldly addictions, the things can't give. दुनिया की एडिक्शन हमें नहीं दे सकती। That is the excellent peace of Jesus Christ is the wonderful. वो अद्भुत शांति यीशु मसीह का बहुत ही अद्भुत है। That peace is going to become inside your heart now. वो शांति आपके अंदर अभी आ रही है। Take a decision. एक निर्णय को लें। I will keep the peace of Jesus Christ always with me. मैं यीशु मसीह की शांति को हमेशा अपने साथ बनाए रखूंगा। I will not disturbed with any unwanted thing. मैं किसी भी अनचाही बातों से परेशान नहीं होऊंगा। Jesus is the peace. यीशु शांति है। He is the reason of my peace. यीशु मेरे शांति का कारण है। I will enjoy the peace all the time. मैं हमेशा शांति का अनुभव करूंगा। I will never allow worldly problem in my life. मैं अपने जीवन में दुनिया की परेशानियां आने नहीं दूंगा। So you pray inside your heart right now. अपने हृदय में इस समय प्रार्थना करें। Jesus want to give you the peace. यीशु मसीह आपको शांति देना चाहता है। Your house is a house of peace.
आपका घर शांति का भवन You है। should enjoy the peace inside your home. आपके घर के अंदर आपको शांति का आनंद उठाना है। That is the God's plan. वही परमेश्वर की योजना है। Pray for the peace of your family. प्रार्थना करें अपने परिवार की शांति के लिए। So have a peace with other people. दूसरे लोगों के साथ शांति बनाए रखें। Forgive everyone. एक दूसरे को माफ करें। Even though they did a wrong thing against you. शायद उन्होंने आपके विरुद्ध में गलत किया होगा, Forgive them. उनको भी माफ कर दें। That is the heart of Jesus. वही यीशु का हृदय That is है। the heart of Jesus. वही यीशु का हृदय है। So they did the sinful things you seen, you or heard, the proof, forgive them. और उन्होंने पाप किया है, उसको आप जानते हैं, तब भी आप उनको माफ कर दें। That is the God's plan. वही परमेश्वर की योजना Forgive है। and forget. एक दूसरे को माफ करें और भूल जाएं। Between the husband and wife, the forgiveness should be there. पति पत्नी के बीच में एक दूसरे से माफी मांगे। So that is the heavenly God's plan. वही परमेश्वर का स्वर्गीय योजना है। Peace already Jesus given to you. शांति पहले से ही परमेश्वर ने आपको दे दिया है। The devil all the time disturb the peace. शैतान हमेशा शांति को तंग करता है। Resist the devil. शैतान को डांटे। Resist the devil. शैतान को डांटे। With the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के द्वारा Allow the peace. Allow the peace. शांति को अनुमति दें। Dear friend, this is the message for you today. यही आपके लिए आज संदेश है प्रिय मित्रों। God is having a great plan for you. परमेश्वर की आपके लिए बड़ी योजनाएं हैं। Everybody put your hand upon your head. अपने सिर पर हाथ रखें। You can confess this. आप इस बात को अंगीकार करें। I am a child of God. मैं परमेश्वर का बच्चा हूँ। God's plan is so great for me. परमेश्वर की योजना मेरे लिए बड़ी है। Nothing can stop the God's blessings in my life. परमेश्वर की योजना को कुछ भी बातें मेरे जीवन से रोक नहीं सकती। No devil can stop the God's plan in my life. कोई भी शैतान परमेश्वर की योजना को रोक नहीं सकता। I will enjoy all the God's blessing. मैं हमेशा परमेश्वर की आशीषों का आनंद उठाऊंगा। I am the child of Jesus Christ. मैं यीशु का बच्चा हूँ। My father's blessing belongs to me. मेरे पिता की आशीषें मेरी हैं। I am inherit the blessing of my father. मैं अपने पिता का वारिस हूँ। I will full of peace from today onwards. आज से मैं आपकी शांति में बने रहूंगा। Dear friends, you should confess this. प्रिय मित्रों, आपको शांति का अंगीकार करना है। Because Jesus already suffered a lot on the cross. यीशु ने बहुत कुछ पीड़ाओं को क्रूस पर सहा है। We are not at all enjoying the God's blessing. हम परमेश्वर की आशीषों का आनंद नहीं उठाते। Suffering is not fulfilling. पीड़ा पूरा नहीं होता है। We are putting him still in the cross with the suffering. हम दोबारा से यीशु को क्रूसित करते हैं। Today let us receive the real peace. आज हम उस शांति को प्राप्त करें। I will live like Jesus. मैं यीशु के समान जीऊंगा। I will speak like Jesus. मैं यीशु के समान बोलूंगा। I am the image of Jesus Christ. मैं यीशु के सदृश बनूंगा। God created me like his own image. यीशु ने मुझे अपने स्वरूप में सृष्टि किया है। So such a way you should have the positive mind all the time. इस तरह पॉजिटिव मन को आप हमेशा रखें। So our God is a great God. हमारा परमेश्वर अद्भुत He परमेश्वर is है। having a great plan for you. उसकी बड़ी योजनाएं हैं आपके लिए। You can say this, repeat this. आप मेरे बाद इस बात को दोहरा सकते My हैं। God is a great God. मेरा परमेश्वर बड़ा परमेश्वर है। इनको फॉलो करो। मेरा परमेश्वर बड़ा परमेश्वर है। He is having a great plan for me. उसकी मेरे लिए बहुत बड़ी योजनाएं हैं। Nothing can stop the God's plan in my life. परमेश्वर की योजना के विरुद्ध कुछ नहीं खड़ी हो सकती। I am going to be full of positive today onwards. मैं हमेशा सकारात्मक रूप से भरता जाऊंगा। All the negative spirit, disturbing spirit, get out from my life. नकारात्मक बातें मेरे जीवन से चली जाएं। In Jesus' name. यीशु के नाम से।
Such a way you have to inherit the God's blessings in your life. आपको इस तरह परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करना है। Turn your Bible, Job chapter 42 verse 2. अपने बाइबल को निकालें, आयुब 42 उसका दूसरा वचन। So this is a wonderful God's plan. ये परमेश्वर की बहुत ही अद्भुत योजना Here the है। Bible says, यहाँ पे बाइबल कहती है, Lord, I know परमेश्वर मैं जानता हूँ you are the all powerful. कि तू सर्वशक्तिमान है, You can do everything, Lord. तू जो चाहे कर सकता है। Lord, no one can stop your great plan in my life. मेरे लिए तेरी महान योजना को कोई नहीं रोक सकता। Dear friends, claim this word for you. प्रिय मित्रों, ये वचन आपके लिए है। God's plan is so great in my life. परमेश्वर की योजना आपके जीवन में बहुत बड़ी है। God is going to do great things in my life. परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कामों को करेगा। Nothing can stop the God's blessings in my life. परमेश्वर की महान योजना को कोई नहीं रोक सकता। Whatever it may be, nothing can stop me to grow in my spiritual life. कोई भी बातें मुझे आत्मिक रीति से बढ़ने में रोक नहीं सकती। Nothing can stop me from the love of Jesus Christ. यीशु के प्रेम में बढ़ने से कुछ भी बातें मुझे रोक नहीं सकती। I am going to grow in my spiritual मैं life. आत्मिक जीवन में बढ़ता जाऊंगा। God is having a great plan for every one of you. परमेश्वर की आपके लिए बड़ी-बड़ी योजनाएं हैं। He is going to do mighty things in your life. वो आपके जीवन में अद्भुत कामों को करेगा। He will do. The Lord Himself will do everything for you. परमेश्वर स्वयं आपके लिए सब कुछ करेगा। You will enjoy the God's blessing. आप परमेश्वर के आशीषों का आनंद उठाएंगे। So how long, how many years you are praying for something in your life? कितने समय से आप किसी विषय के लिए प्रार्थना कर रहे हैं? So how many delayed blessings in your life? आपके जीवन में कितने आशीषें देरी हो चुकी है? Today believe. आज विश्वास करें Keep on speak this word. और इन वचनों को दोहराएं। Lord, you are the God in my life. You are going to do great things in my life. परमेश्वर आप सर्वशक्तिमान हैं और आप अद्भुत कामों को मेरे जीवन में कर रहे हैं। Lord, no one can stop the great blessing you kept in my life. और तेरी महान योजना को मेरे जीवन से कोई नहीं रोक सकता। Believe. विश्वास करें। You are going to see the miracles in your life. आप चमत्कार को अपने जीवन में अनुभव करने जा रहे हैं। So increase the Bible reading more time. अपने बाइबल मनन को और भी बढ़ाएं। Increase your personal prayer more time. आपका व्यक्तिगत प्रार्थना और बढ़ाएं। All the time your mind and heart should connected with God. हर समय आपका मन और हृदय परमेश्वर से जुड़ा रहे। Keep on confess, keep on declare this promise. परमेश्वर के वायदों को अंगीकार करते रहें। Lord, you can do anything in my life. परमेश्वर आप मेरे जीवन में बहुत कुछ कर सकते All the हैं। impossible things are going to be possible in my life from today onwards. जो असंभव बातें आज से मेरे जीवन में संभव होने वाली हैं। Lord, you can do great things in my life. परमेश्वर आप मेरे जीवन में अद्भुत कामों को करेंगे। We are going to grow. हम बढ़ने जा रहे हैं। We are going to increase. हम और भी बढ़ेंगे। No more financial problem in our life. अब कोई आर्थिक परिस्थितियां नहीं। No more sickness in our life. अब कोई बीमारियां नहीं। We are blessed. आप आशीषित हैं। We are blessed. हम आशीषित हैं। You should confess. आपको अंगीकार करना I am blessed है। by God. मैं परमेश्वर द्वारा आशीषित हूँ। No more weakness in my body. अब और कोई कमजोरियां नहीं मेरे शरीर I am में। received the strength of God. मैंने परमेश्वर से सामर्थ को प्राप्त किया है। I am no more poor. अब मैं गरीब नहीं हूँ। I am rich in मैं Christ. मसीह में धनी हूँ। I am rich in मैं Christ. मसीह में धनी हूँ। I can do all things through Jesus who strengthens me. मैं मसीह यीशु द्वारा जो मुझे सामर्थ देता है उनके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ। Philippians 4:13. फिलिप्पियों की पत्री 4 उसका 13वां वचन। I can do all things through Jesus who strengthens me. मैं यीशु के द्वारा सब कुछ कर सकता हूँ जो मुझे सामर्थ देता Just है। believe. विश्वास करें। I am going to pray more time. मैं और ज्यादा समय प्रार्थना करूंगा Because through the grace of Jesus Christ it is possible. क्योंकि केवल परमेश्वर
परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा ये संभव है। I can pray more time in the heavenly language with the grace of God. मैं अन्य भाषा में और भी प्रार्थना परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा ही कर सकता हूँ। I will keep on prophesy with the grace of God. मैं भविष्यवाणी करूंगा परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा। Dear friends, such a way we have to grow in our spiritual life. प्रिय मित्रों, ऐसे ही हमें आत्मिक जीवन में बढ़ना है। Our God is going to do great things in your life. हमारा परमेश्वर आपके जीवन में महान कामों को करेगा। He already pre-planned everything for you. उसने पहले से ही आपके लिए योजनाएं बना दी He हैं। already pre-planned everything for your children, your future, your marriage, and everything is a God's plan. उसने आपके बच्चों के लिए पहले से ही योजनाएं बना दी हैं। Before the foundation of the world, everything is prepared for you. इस पृथ्वी की रचना करने से पहले ही आपके लिए सब कुछ तैयार कर दिया है। Every blessing is going to be come in your life one by one from today onward. हर एक आशीष आपके जीवन में एक के बाद एक आती जाएंगी। All the blessings will come in your life. सारी आशीषें आपके जीवन में आएंगी। Whatever it may be, the delay in your marriage, चाहे आपके शादी में देरी क्यों ना हो, God is going to send the promise blessing in your life very soon. परमेश्वर आपके जीवन में वायदा किया हुआ व्यक्ति को जरूर से लेके आएगा। How many years you are waiting for your gift of child? कितने सालों से आप बच्चे की आशीष के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। You may try it in your own strength, your own power, with your own treatment, but believe that God is going to perform miracle in your life. अपनी बुद्धि से, अपने सामर्थ से आपने बहुत ही प्रयास किया होगा, लेकिन परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत करने जा रहा है। God is going to exalt your children. परमेश्वर आपके बच्चों को बढ़ाएगा। They will be taught by the Lord. वो परमेश्वर द्वारा शिक्षित लोग बच्चे होंगे। Great shall be the peace of your children. आपके बच्चों की शांति बड़ी होगी। Your children will be exalted into greater places. आपके बच्चों को परमेश्वर ऊंचे स्थानों पे ले चलेगा। Your children will inherit the blessings in the high blessings. और स्वर्गीय आशीषों, बड़ी आशीषों को वो प्राप्त करेंगे। So believe this Job 40:2 all the time. हमेशा आयु 42:2 वचन याद रखें। Lord, you can do everything in my life. परमेश्वर आप मेरे जीवन में सब कुछ कर सकते हैं। Nothing will miss in my life. मैं अपने जीवन में कुछ कमी नहीं होगी। Nothing will lack in my life. मेरे जीवन में किसी चीज की कमी नहीं होगी। I am going to pray more. मैं और भी प्रार्थना करूंगा। I am going to read the Bible more. मैं और भी बाइबल को पढ़ूंगा। Psalm 34:10 says, भजन संगीता 34 उसका 10वां वचन कहता है, young lion will lack hunger. जवान सिंहों को तो घटी होती है। Those who seek the Lord shall never lack anything. जो परमेश्वर की खोजी है उनको किसी भली वस्तु की घटी You नहीं will never होती। lack anything. आप कभी किसी चीज की कमी घटी नहीं होगी। Today onwards, the abundance blessings are going to be come in your life. आज से बहुतायत की आशीष आपके जीवन में आएंगी। The overflow anointing is going to be come in your life. आपके जीवन में उमड़ता हुआ अभिषेक आएगा। You are going to grow more in your spiritual life. अब आत्मिक जीवन में और भी बढ़ेंगे। Jeremiah 29:11. यिर्मयाह 29 उसका 11वां वचन। The Bible says, बाइबल कहती है, my plans are so great for you. मेरी योजनाएं तेरे लिए बहुत ही महान है। I am having a great plan for you. मेरी योजनाएं तेरे लिए महान है। I am having a great thoughts for you. मेरे पास तेरे लिए बहुत सारी सोच है। So I am going to fulfill the great plan in your life. मैं तेरे जीवन में सारी योजनाओं को पूरी करूंगा। Ephesians 3:20 says, एफिसियों की पत्र 3:20 में लिखा है, our God is going to answer your prayer exceedingly abundantly beyond your imagination. परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को आपकी कल्पना से बढ़कर देगा। So believe this word of God. इस परमेश्वर के वचन पर विश्वास I am going to करें। bless exceedingly abundantly. परमेश्वर आपको अविश्वसनीय रूप से आशीष करेगा। So have a great dream inside your mind. और एक अच्छी कल्पना को आप अपने मन में रखें। God will fulfill your dream. परमेश्वर आपके सपनों को पूरा करेगा। Surely that will fulfill in your life. वो आपके जीवन में पक्का पूरा करेगा। So in the life of Abraham, अब्राहम के जीवन में God called him, परमेश्वर ने उसको बुलाया, Abraham, अब्राहम leave your place, अपने घर को छोड़, leave your everything, अपने सब कुछ चीजों को छोड़ दे, go to the place I show you. और उस जगह पे जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। So he just obeyed. उसने आज्ञा को माना। So then God promised him, ये परमेश्वर ने उससे वायदा किया, even though there is no possibility to have the child,
यानी कि उसको बच्चा होना असंभव था। God shown him the stars on the sky. परमेश्वर ने उसको तारे दिखाए। Abraham, अब्राहम देख, look upon the star. तारों को देख, Your generation is going to be like तेरी this. पीढ़ियां ऐसे आशीषित होंगी। Dear friend, this is the God's blessing. प्रिय मित्रों, ये परमेश्वर का आशीष है। So, Bible very clear says, Galatians 3:14 says, गलती की पत्री 3:14 में लिखा है, more than Abraham, अब्राहम से ज्यादा we are blessed through Jesus Christ. हम मसीह यीशु के द्वारा आशीषित हैं। We are blessed through Jesus Christ. हम मसीह यीशु के द्वारा आशीषित हैं। So God blessed Abraham with the promise on Isaac. परमेश्वर ने अब्राहम को उसके वायदे के पुत्र इसहाक से आशीष किया। So in your life also God is giving you the promises. आपके जीवन में भी परमेश्वर वायदों को देता है। Believe this promise. विश्वास करें इन वायदों पर। Receive this promise. इस वायदों को प्राप्त करें। Walk on the promise. आप उसको दृढ़ करें। Imagine great things in the promise. और परमेश्वर की दृश्य को देखें। You will receive the fulfillment of the promise in your तब life. आप अपने वायदे को जरूर से प्राप्त करेंगे। In the life of Isaac, आइसक के जीवन में God given him the promise. परमेश्वर ने उसको वायदा दिया। So Isaac was a man of meditation and prayer, Bible says. इसहाक जो है ध्यान और प्रार्थना का व्यक्ति था। He used to go for the meditation in the evening time in the wilderness nearby the springs. और शाम को वो जंगल में झरनों पर ध्यान करने जाता था। So he used to go to the wilderness, very dry place, but there is a kind of a springs of water. That is the Holy Spirit. So he used to go there and do the meditation. वो सूखे झरने के पास जाता था, लेकिन वहां पे भी जल के झरने थे, वो जो पवित्र आत्मा था। So from that place only, God opened his eyes to see the Rebecca in the distance place. उस जगह से ही परमेश्वर ने उसकी आंखों को खोला ताकि रिबेका को वो दूर से देख ले। So this is the kind of the spiritual vision in our life. ये आत्मिक दर्शन है आपके लिए, To fulfill the promises of God, ताकि परमेश्वर के वायदे आपके जीवन में पूरी हो। to inherit the promises of God, परमेश्वर के वायदों को आप वारिस बने। you need the distance vision, आपको दूर से दर्शन को प्राप्त not a करना short है। vision here. पास से दर्शन का नहीं, दूर से Distance vision. दूर से दर्शन को प्राप्त करना है। Then only the Spirit of the Lord will take you into more deep in the spiritual level. और तब पवित्र आत्मा आपको और भी गहराई के दर्शन में ले चलेगी। So then Isaac life, और उसके आइसक के जीवन में देखते हैं, Isaac prayed for his wife Rebecca. उसने अपनी पत्नी रिबेका के लिए प्रार्थना किया। God blessed her with a twins baby. परमेश्वर ने उसको ट्विंस बेबी के साथ आशीष किया। So why I am sharing this? मैंने इस बात को इसलिए बताया, All these things are connected with this Job 42:2. और ये सारी बातें आयुब 42:2 से जुड़े हुए हैं। So this is the God's blessings for you. यही परमेश्वर की आशीषें आपके लिए भी हैं। Not even a small blessing will never miss in your life. एक कोई भी छोटी आशीष भी इसमें से आपके जीवन में पूरा ना हो, ऐसा नहीं होगा। Because all the promises of God are yes and amen in Christ Jesus. मसीह यीशु में सारी आशीषें हाँ और आमीन में पूरी होती हैं। So the God's word is the prophecy. परमेश्वर का वचन प्रोफेसी है। So you have to inherit the word of God as a prophecy. आपको परमेश्वर के प्रवचन को स्वीकार करना है। So that is the God's plan. वही परमेश्वर की योजना है। So then in Isaac life, आइसक के जीवन में, so note this word, read this chapter 20, Genesis 26 in your home. अपने घर में जाके उत्पत्ति 26वें अध्याय को पढ़ें। So Isaac received the God's blessing. Genesis 26:12 says Isaac received 100-fold blessing. उत्पत्ति 26:12 में लिखा है इसहाक को 100 गुना आशीष मिला। The same chapter Genesis 26:22 says उत्पत्ति 26 उसका 22वां वचन कहता है, Isaac received the Rehoboth blessing. आइसक को रेहबोत की आशीषें मिली। That is the blessing of increase and the जो multiplication. वृद्धि और गुना करने का आशीष है। Then the same chapter Genesis 26:31-33. उसी सेम अध्याय में 26:31 से 33 वचन में, There Isaac received the Beersheba blessing. यहाँ पे इसहाक को बेर्शेबा शांति का आशीष मिला। The blessing of peace. शांति की आशीष। Dear friends, in your life also God is promising these blessings. प्रिय मित्र,
मित्रों, परमेश्वर आपके जीवन में भी इस आशीष को देता है। Keep on climb Job 42:2. और हमेशा आयुब 42 उसका दूसरा वचन पढ़े। I know, Lord, you can do everything in my life. मैं जानता हूँ परमेश्वर आप मेरे जीवन में सब कुछ कर सकते हैं। Lord, in the life of Abraham, Isaac life, nothing lack. अब्राहम और इसहाक के जीवन के समान I am the child of you. मैं आपका बच्चा हूँ। More than them, you are blessed me. उनसे ज्यादा आपने मुझे आशीष किया I है। received these blessings, Lord. मैं अपने इस सारी आशीषों को प्राप्त करता हूँ। In the life of Jacob's life, याकूब के जीवन में Jacob cheated his own brother, Esau. याकूब ने अपने ही भाई एसाव को धोखा दिया। Jacob never keep quiet. याकूब चुप नहीं रहा। Jacob wrestled with God in prayer. उसने प्रार्थना में कुश्ती की परमेश्वर के साथ। So he called the Prince of God. So pray like Jacob. Pray like Jacob. याकूब के समान प्रार्थना करें। Wrestle with God in prayer. परमेश्वर से प्रार्थना में Lord, प्रार्थना until करें। you bless me, परमेश्वर से कहें जब तक आप मुझे I will आशीष never नहीं leave करेंगे, you. मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। Lord, unless you bless me, परमेश्वर आप मुझे जब तक आप मुझे आशीष नहीं Lord, all the करेंगे, promises should be fulfilled in my मेरे life. जीवन में सारी बातें पूरी होने पाए। Pray like Jacob. याकूब के समान प्रार्थना Wrestle in करें। God. प्रार्थना में कुश्ती लड़े। Wrestle with God. कुश्ती लड़े प्रार्थना में। Wrestle with the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के साथ कुश्ती लड़े। All the blessings will come in your life. सारी आशीष आपके जीवन में आ जाएंगी। So in the life of Joseph, योसेफ के जीवन में so Joseph had a heavenly vision and dreams. उसको स्वर्गीय दर्शन और स्वप्न को प्राप्त हुआ। The Bible very clearly says, बाइबल स्पष्ट रूप से कहती है, so he saw one dream, उसने एक स्वप्न को देखा। sun, the moon, and the 11 stars bowed down and worshipped him. और सूर्य, चंद्रमा और 11 सितारे उसके सामने झुक रहे हैं। So this is the vision he had. ये स्वप्न को उसने देखा। According to Psalm 42:2, भजन संगीता 42 उसके दूसरे वचन के he keep मुताबिक, on prayed for this vision, the fulfillment of the vision. और इस दर्शन के पूरे होने के लिए वो हमेशा निरंतर प्रार्थना करता था। Between that he gone through lots of phase of the problem. उसके बीच में वो कई परेशानियों से होकर गुजरा। The own brother sold out him in the hand of the other people. उसके भाई ने, खुद के भाई ने उसको बेच दिया। Joseph went to the prison. योसेफ बंदीगृह में भी गया। You understand this because such a situation will come in your life. क्या आप समझ पा रहे हैं ऐसी परिस्थिति अगर आपके जीवन में हो तो? Blameless Joseph. हमेशा योसेफ जो है वफादार था। Blameless, no sin in his life. कोई भी पाप उसके जीवन में नहीं था। He went to the prison. वो बंदीगृह में गया। So from the prison, उस बंदीगृह से God exalted him परमेश्वर ने उसको ऊंचा किया, into the throne. परमेश्वर के सिंहासन के That पास। is our God. वही परमेश्वर है हमारा। Prison to the throne. परमेश्वर हमें सिंहासन की ओर उठाता है। Let us give one big clang like how many of you understand this? परमेश्वर के Prison लिए to the throne. परमेश्वर के लिए तालियां बजाएं। परमेश्वर में ऊंचे स्तर पे ले चलेगा। So in your life also, आपके जीवन में भी all your problems सारी परेशानियां going to take you into the great blessings of life. आपके अद्भुत आशीषों की ओर आपको ले चलेंगे। That is the Job 42:2. यही आयुब 42:2 वचन है। God's promises will fulfill in your life. परमेश्वर के वायदे आपके जीवन में पूरे होंगे। In the life of Moses. मूसा के जीवन में So when Moses born, जब मूसा का जन्म हुआ so nobody knows the baby, little baby. और उन लड़कों को नहीं जानते थे। So that time the government order also kill all the boy babies. जो गवर्नमेंट ने इस ऑर्डर को दिया था कि सभी लड़के बच्चों को मार दिया जाए। So the God's plan in Moses' life was so great. परंतु परमेश्वर की योजना मूसा के जीवन में बहुत बड़ी थी। The parents understand that this child will deliver the people from the bondage of the Egyptian to the Israelites. और परमेश्वर उसके माता पिता समझ गए थे कि इजिप्ट के लोगों को वो छुड़ाएगा। So the day came. वो दिन आया। So God exalted Moses as a leader.
परमेश्वर ने मूसा को एक लीडर के तौर खड़ा किया। God want to use you also. परमेश्वर आपको भी इस्तेमाल करना चाहता Commit है। your life. अपने जीवन को समर्पित Surrender your करें। life. अपने जीवन को समर्पित करें। Lord, use me. परमेश्वर मुझे इस्तेमाल कर। Lord, I should be used by you, Lord. परमेश्वर मैं आपके द्वारा इस्तेमाल होना चाहता हूँ। More than Moses, God want to use you. मूसा के ज्यादा परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहता है। In the life of David, दाऊद के जीवन में the shepherd boy, एक चरवाहा लड़का forgotten by everyone. जो सबके द्वारा भूल गया The है, own parents forgotten him. उसके माता पिता भी उसको भूल गए हैं। That's why the prophet Samuel is in their home. तभी भविष्यवक्ता शैमुएल वहां उसके घर पे आते The हैं। parents told no other child. माता पिता से पूछते और कोई बच्चे नहीं हैं। Then God spoke to the prophet Samuel, one more child, one more boy is there. परमेश्वर ने शैमुएल भविष्यवक्ता से कहा एक और बेटा है। You may be forgotten. आप भूले जा चुके हो सकते The हैं, worldly people will forget. दुनिया के लोग भूल जाएंगे, God will never forget. परमेश्वर कभी नहीं भूलेगा। Jesus will never forget you. यीशु कभी आपके नहीं I will भूलेगा। never leave you nor forsake you. मैं तुझे ना छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। Even though mountains may be failed, और चाहे पहाड़ टल जाए, the mountains may be moved, पहाड़ हिल जाएंगे, my grace will be sufficient for you. मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। So Samuel told the father of David, Jesse, call your younger son. जो भविष्यवक्ता शैमुएल है उसने पिता जेसी से कहा अपने बेटे को ले आ। Samuel anointed David. शैमुएल ने दाऊद को अभिषेक किया। Are you received the anointing of the Holy Spirit? क्या आपने पवित्र आत्मा के अभिषेक को प्राप्त किया है? That is very important in ये you. बहुत ही महत्वपूर्ण है। You have to fill with the Holy Spirit and speak the heavenly language. आपको पवित्र आत्मा से भरना है और अन्य भाषा में बात करना है। Then only the God's plan will be open in your life. तभी परमेश्वर की योजनाएं आपके जीवन में खुलेंगी। So pray for the great blessings of the Holy Spirit and the gifts of the Holy Spirit. प्रार्थना करें परमेश्वर की अद्भुत अभिषेक की आशीषें और पवित्र आत्मा के वरदानों के लिए। Then David gone through lots of struggle and trouble by the king Saul. और दाऊद की राजा शॉल के द्वारा बहुत ही तनाव का अनुभव किया। God protected him. परमेश्वर ने उसको सुरक्षित रखा He inherited the blessing God kept for him as a king of Israel. और परमेश्वर ने जो आशीष रखी थी इस्राएल के राजा के रूप में वो आशीष को उसने प्राप्त किया। In the Daniel and his friends' life, दानिएल और उसके दोस्तों के जीवन they gone through the fiery furnace. वो आग की भट्टी से होकर गए So they gone through the lion's den. और वो शेरों की मांग की ओर होके गए। God exalted them. परमेश्वर ने उन्हें ऊंचा खड़ा किया। So finally, in the life of Jesus Christ, अंत में यीशु के जीवन में भी Jesus gone through lots of problems. यीशु मसीह भी बहुत सी समस्याओं का सामना किया। Once Jesus born, King Herod tried to kill him. राजा ने उसको मारने की कोशिश करी। He started killing the babies throughout his region. There was tears, there was great sorrow in everywhere. Rachel cried for her child. वहाँ पे आंसू पीड़ा थे और रेचल अपने बच्चे के लिए रो रही थी। Bible says, बाइबल कहती है so God exalted Jesus Christ. यीशु मसीह को परमेश्वर ने ऊंचा खड़ा John किया। chapter 4, 1 to 11. यूहन्ना 4:1 से 11 Jesus वचन। gone through the temptation through the Satan, the devil. यीशु मसीह ने भी प्रलोभन का सामना किया शैतान के द्वारा। But Jesus Christ overcame the devil through the written word of God. परंतु परमेश्वर के लिखित वचन के द्वारा उसने उस शैतान पर विजय को प्राप्त किया। In your life there is a temptation, आपके जीवन में क्या प्रलोभन है? some kind of the sinful addiction. कोई पाप जो आपको परेशान कर रही है? The Holy Spirit is ready to help you today. पवित्र आत्मा आपको मदद करना चाहता है। You can overcome. आप उस पर जय प्राप्त कर You सकते can हैं। overcome all the temptation in your life. आप हर एक प्रलोभन से जय प्राप्त कर सकते हैं। Jesus Christ will help you. यीशु मसीह आपकी मदद करेगा। So Revelation 21:7. प्रकाशित वाक्य 21 उसका 7वां वचन। So everyone note this word. इस वचन को आप लिख लें। Revelation 21:7. प्रकाशित वाक्य 21 उसका 7वां वचन। Here the Bible says, यहाँ पे बाइबल कहती है everyone who wins or overcome the worldly temptation, the trouble of this world, towards the victory, towards the victory, God will honor them. I will be their God and they will be my children.
हर कोई जो संसारिक प्रलोभन और जीत की और परेशानियों को जीतता है या दूर करता है, वह इन चीजों का वारिस होगा। So you are the more than conqueror. आप जयवंत से बढ़कर हैं। You have to say, I am the more than conqueror. आपको कहना मैं जयवंत से बढ़कर हूँ। I will overcome every temptation. मैं हर एक प्रलोभन में जय प्राप्त I करूंगा। will overcome every trials and tribulation in my मैं life. अपने जीवन में हर एक प्रलोभन को जय प्राप्त करूंगा। The victory belongs to me. जय मेरा है। The battle belongs to God. जो युद्ध है परमेश्वर का The है। victory belongs to me. जय मेरा है। The battle belongs to God. युद्ध परमेश्वर का है। The victory belongs to me. जय मेरा है। The victory belongs to me. जय मेरा है। I am more than conqueror. मैं जयवंत से बढ़कर हूँ। So the Job 42:2 is going to be fulfilled in your life. आयु 42 उसका दूसरा वचन आपके जीवन में पूरा होगा। God's plan is so great in your life. परमेश्वर की योजना आपके जीवन में बहुत बड़ी है। Everyone, you close your eyes. अपनी आंखों को बंद करें। Now the Holy Spirit is coming upon you. पवित्र आत्मा आपके ऊपर आ रहा है। So the Holy Spirit want to fill you today. पवित्र आत्मा आपको भरना चाहता है। The Holy Spirit want to empower you today. पवित्र आत्मा आपको सामर्थ देना चाहता है। You are going to be more than conqueror. आप जयवंत से बढ़कर होंगे। The temptation will not overcome you anymore. कोई भी प्रलोभन आप पर जय नहीं प्राप्त करेगी। The worldly sinful addiction will not overcome you anymore. दुनिया के पाप या एडिक्शंस आपको अंदर नहीं लेंगे। The God's promise is going to be help you. परमेश्वर के वायदे आपकी मदद करेंगी। The God's promise is the Holy Spirit. परमेश्वर का वायदा है पवित्र आत्मा। The God's great promise is the Holy Spirit. परमेश्वर का अद्भुत वायदा है पवित्र आत्मा। Everyone open your mouth, Lord, fill me with your Holy Spirit. अपने मुंह को खोल के प्रार्थना करें, परमेश्वर मुझे भर दे। Lord, I am not able to live a successful life in my life. परमेश्वर मैं अपने जीवन में सफल नहीं हो पा रहा। Lord, many failures are happening in my life. काफी असफलता मेरे जीवन में है। Holy Spirit, you help me. पवित्र आत्मा मेरी मदद कर। I am claiming all the promises of God in my मैं life. अपनी सारी आशीषों को अपने जीवन में लेता हूँ। Holy Spirit, पवित्र आत्मा fill me. मुझे भर दे। Fill me. मुझे भर दे। Fill me, मुझे Lord. भर दे परमेश्वर। I need your Holy मुझे Spirit. पवित्र आत्मा की जरूरत I है। need the Holy Spirit in my मुझे life. पवित्र आत्मा की जरूरत है मेरे जीवन में। Lord, fill me. परमेश्वर मुझे भर दे। Fill me. मुझे भर दे। Everyone receive. पवित्र आत्मा को स्वीकार करें। Receive. प्राप्त करें। Receive. प्राप्त करें। Oh, rimala hamana ma shandala malabaraba. Rika malaba malaba na malaba. Shandale ma roko to lobo roko to lobo. ओ रेखे ले में अभिषेक आ रहा है, अभिषेक आ रहा है। हर एक व्यक्ति को छू ले, छू ले, छू ले। अभिषेक अभी स्वर्ग खोल रहा है। एक विशेष महिमा, स्वर्गीय महिमा अभी हर एक व्यक्ति के ऊपर मंडल आ रहा है। पेंतेकोस्त के दिन के समान, पेंतेकोस्त के दिन के समान पवित्र आत्मा मंडल आ रहा है, मंडल आ रहा है। छूले, छूले। नया अभिषेक, नया अभिषेक, नया अभिषेक। ओ रेखे ले में रोशारा बाला बालाबा, संदला बाला बारा बना मालाबा, रिकारा बालाबा। नया नया भाषा, नया नया भाषा। कितने लोग अन्य भाषा में अभी तक नहीं बात किया है? ऐसे लोग मुंह खोल, मुंह खोल। अभी पवित्र आत्मा आपके ऊपर आ रहा है, आ रहा है। पवित्र आत्मा, अभिषेक, अभिषेक, फायर अनॉइंटिंग, फायर अनॉइंटिंग। रिका माला बागा लाबा, संदला बाला बाला बारा बाला बारा बनामा, संदना माला बाला बारा बाला बा, रिका माला बारा बाला बा। ओ री माला हरा बाला बारा बा। सारे शैतान के बंधन को हर परिवार से, कितने परिवार वो शैतान से, शैतान के बंधन से पीड़ित है, ऐसे परिवार को अभी परमेश्वर छुटकारा दे रहा है। सारे शैतान के बंधन, सारे तांत्रिक मांत्रिक का बंधन यीशु मसीह के नाम से टूट जा, टूट जा, टूट जा। अभिषेक, अभिषेक। ओ रिबाला गरा बाला बना माला बारा बना माला बा, संदला बाला बारा बाला बारा बना माला बारा बाला बारा बा।
Shandana malabara bana malabara balabara balabara halaba. Shandala bagabari yatala bara balabara bana malabara balabala. ओ रे मेले हे बेले बे भविष्यवाणी करने के लिए अभिषेक अभी आपके ऊपर आ रहा है। हर परिवार, हर एक व्यक्ति भविष्यवाणी के ओ रिबाला बाला बारा बना माला बारा बा। यीशु मसीह का गवाही भविष्यवाणी का आत्मा है। यीशु मसीह का गवाही ओ रिबालाबा, हम गवाही है, हम यीशु मसीह का गवाही है, इसलिए हम भविष्यवाणी करने के लिए अभिषेक आ रहा है। ओ रिबाला करबना माला बारा बाला बा शंदला बाला बारा बाला बारा बना माला बारा बाला बा रोशे खेले बेरे बेने में रोको दी बाला बाला बारा बना माला बना माला बारा बाला बा। धन्यवाद यीशु, परमेश्वर धन्यवाद, आशीष दे यीशु मसीह के नाम से। इन जीसस इज द माइटी नेम वी प्रे, आमेन आमेन।